अमेरिका से है, जहां ट्रंप और ज़ेलेंस्की आपस में भिड़ गए। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में, जहां आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति और विदेशी मेहमान मीडिया से मुखातिब होते हैं, मुलाकात करते हैं, वहीं पर शुक्रवार को ऐसा नजारा दिखा जो किसी ने भी पहले नहीं देखा होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जैसे ही ट्रंप की तरफ से आए सीज फायर के सुझाव को नकारा तो माहौल गर्मा गया। ज़ेलेंस्की ने सीधे सीधे कह दिया कि वो किसी भी हाल में पुतिन के साथ समझौते को तैयार नहीं है, जिस पर ट्रंप भड़क गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि ज़ेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। माहौल इस कदर तलखी भरा रहा कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को वापस जाने तक को कह दिया और आखिर में नतीजा ये हुआ कि जिस डील पर पूरी दुनिया की नजरें थीं, उसके बिना ही ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से वापस लौट आए। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire. What do they think? I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. और इसी बहसबाजी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, और ये खबर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भाषा की मर्यादा भूल गए। जी हां, ट्रंप ने मीडिया के सामने ही ज़ेलेंस्की को मूर्ख कह दिया। जब ऑफर पर ज़ेलेंस्की एतराज जताने लगे तो ट्रंप ने उन्हें टोका और मूर्ख राष्ट्रपति कह डाला, जबकि ज़ेलेंस्की कहते रहे कि अगर मुझे बुलाया है तो कम से कम बोलने का मौका दिया जाए। Who gave you sheets? If you will speak very loudly about the war, you can... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. Yes. What about if you didn't have our military equipment, you invited me if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something maybe new. If you will speak very loudly about the war, you can... He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, you haven't been alone. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. What about if you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something maybe new. less. तो ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत करीब 45 मिनट तक चली, जिसमें आखिरी के 10 मिनट में बनती बनती बात बिगड़ गई। अब आपको बताते हैं कि आखिर बातचीत बहस में कब और कैसे तब्दील हुई। दरअसल ओवल ऑफिस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे, जिन्होंने ज़ेलेंस्की को सलाह दी कि जंग को कूटनीति के जरिए खत्म किया जाना चाहिए। कूटनीति सुनते ही ज़ेलेंस्की का पारा चढ़ गया और उन्होंने रूस पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पूछ डाला कि आखिर अमेरिका किस कूटनीति की बात कर रहा है।
ज़ेलेंस्की के तल्ख अंदाज के बाद माहौल पूरी तरह से बदल गया और फिर इसमें ट्रंप भी कूद पड़े। In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed with him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. ऐसा नहीं है कि शुरू से ही माहौल तनाव भरा था। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें थी और शुरुआत भी गर्मजोशी की तस्वीरों से हुई। खुद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस के बाहर रिसीव किया, लेकिन फिर अंदर जैसे ही बातचीत शुरू हुई तो पिक्चर बदल गई। गर्मजोशी गहमा गहमी में बदल गई और आखिर में बिना किसी समझौते और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ज़ेलेंस्की को यूं ही व्हाइट हाउस से लौटना पड़ा। इस मुलाकात का पूरा सार ये बताता है कि ये 3 तस्वीरें जो आपके सामने हैं, उससे आप इस बातचीत का पूरा सार समझ सकते हैं। हाल ही में दरअसल व्हाइट हाउस में जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच ये तीखी बहस हुई, ये बहस के साथ शुरू नहीं हुई। गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया ज़ेलेंस्की का और उसके बाद जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, युद्ध विराम पर तीखी बहस हुई और तीसरी तस्वीर ये सामने आई जब ज़ेलेंस्की को बैरंग व्हाइट हाउस से वापस लौटना पड़ा। और आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इस पूरी हाई वोल्टेज बहस के बाद ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से लौट गए, जिस पर बाद में ट्रंप का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका की मदद से शांति के लिए तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की को लगता है कि हमारे दखल से उन्हें बातचीत में बड़ा फायदा मिलेगा। मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। ज़ेलेंस्की ने ओवल हाउस में अमेरिका का अपमान किया। ज़ेलेंस्की वापस आ सकते हैं जब वो शांति के लिए तैयार हों। To end immediately. I want a ceasefire now. He says, oh, I don't want a ceasefire. Well, all of a sudden he's a big shot because he has the U.S. on his side. Either we're going to end it or let him fight it out. And if he fights it out, it's not going to be pretty. Because without us, he doesn't. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. Feel influenced. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have.
जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से दो टूक कहा कि पुतिन को हराना नामुमकिन है, वहीं दूसरी तरफ पुतिन के एक बेहद करीबी ने नाटो को धमकी दी है कि अगर ट्रंप और पुतिन की वार्ता के बीच नाटो रोड़ा बना तो फिर रूस इस धरती से नाटो का सफाया कर देगा। इस धमकी के बाद से कई मोर्चों पर जंग तेज होने की खबरें सामने आ रही हैं। धरती से मिटा देंगे नेटो, पुतिन का खौफ, वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की। रूस यूक्रेन जंग में बाजियां तेजी से पलट रही हैं। जो ज़ेलेंस्की लगभग हर दिन जंग जीतने का दावा कर रहे थे, वो ज़ेलेंस्की आज वॉशिंगटन में भीगी बिल्ली बनते नजर आए। हम आपको यूक्रेन युद्ध से जुड़ी 3 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन और ट्रंप के ट्रैप में फंसकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका को यूक्रेन के 50% से ज्यादा दुर्लभ खनिज देने को तैयार हो गए हैं। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पुतिन के कारोबारियों और कमांडरों ने ऐलान कर दिया है कि अगर पुतिन और ट्रंप की शांति वार्ता को नेटो या यूरोपीय देशों ने नुकसान पहुंचाया तो रूस धरती से नेटो का नामो निशान मिटा देगा। इधर ISW की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चाहे नेटो या फिर यूरोपीय संघ, अब कोई भी यूक्रेन से रूस का कब्जा नहीं हटा पाएगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन 10 लाख से ज्यादा यूक्रेनियों को रूस का गुलाम बनाने जा रहे हैं। 1011 दिन से ज्यादा की यूक्रेन जंग में अब राष्ट्रपति पुतिन पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। हालात ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और जर्मनी के चांसलर रहे ओलाफ शॉल्ज वॉशिंगटन में ट्रंप से मीटिंग करने के बाद पूरी तरह से खौफ में आ चुके हैं। ट्रंप ने मीडिया के सैकड़ों कैमरों के सामने जता दिया कि पुतिन मेरा यार है, बाकी सब बेकार है। ट्रंप की इस कूटनीति ने यूरोपीय और नेटो देशों को हक्का बक्का कर दिया है। हालात ये है कि अब 30 यूरोपीय देश ये मानकर चल रहे हैं कि ट्रंप पूरे यूक्रेन पर पुतिन का कब्जा करा सकते हैं। इसलिए अब नेटो और यूरोपीय संघ कोशिश में जुटे हैं कि पुतिन और ट्रंप के बीच यूक्रेन युद्ध पर होने वाली शांति वार्ता फेल हो जाए। रूस को इस साजिश की भनक लग चुकी है और अब पुतिन के बेहद करीबी माने जाने वाले व्लादिमीर सोलोवियोव ने ऐसी धमकी दी है जिसे सुनकर यूरोपीय संघ और नेटो के होश उड़ जाएंगे। जरा देखिए रूस में टीवी होस्ट और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रमुख सहयोगी व्लादिमीर सोलोवियोव ने क्या धमकी दी है। पुतिन के प्रमुख सहयोगी व्लादिमीर सोलोवियोव ने नेटो देशों को धमकी देते हुए कहा है कि अगर पुतिन और ट्रंप की वार्ता सफल नहीं होती है तो ये तय है कि रूस साजिश करने वाले नेटो देशों का इस धरती से सफाया कर देगा। व्लादिमीर सोलोवियोव ने नेटो देश जर्मनी पर भड़कते हुए कहा कि अगर जर्मनी के नए चांसलर बनने वाले फ्रेडरिक मर्ज ने यूक्रेन की सैन्य मदद की तो मॉस्को जर्मनी का धरती से सफाया कर देगा। असल में जर्मनी के चांसलर रहे ओलाफ स्कोल्ज की तुलना में जर्मनी के नए चांसलर बनने वाले फ्रेडरिक मर्ज यूक्रेन को मध्यम दूरी की टॉरस मिसाइलें देने की योजना बना रहे हैं, जिसे लेकर रूस बुरी तरह से भड़क गया है। पिछले महीने पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलोवियोव ने कहा था कि रूस लंदन को पानी में डुबोकर तबाह कर देगा। व्लादिमीर सोलोवियोव अभी तक ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को पूरी तरह से तबाह करने की धमकी दे चुके हैं। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन से 7,880 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में घबराए और मुरझाए ज़ेलेंस्की को पुतिन प्रेमी ट्रंप का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें गवाह हैं कि ज़ेलेंस्की को एहसास हो चुका है कि अब यूक्रेन को न सिर्फ रूस रौंद रहा है बल्कि अमेरिका भी यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों को लूटने में जुट गया है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर इतना ज्यादा दबाव बना दिया है कि वो चाहकर भी अमेरिका को रूस के खिलाफ नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने महज 3 दिन में ही ज़ेलेंस्की को बिना चुनाव का तानाशाह से लेकर यूक्रेन जंग का जिम्मेदार तक कह चुके हैं। जरा देखिए क्यों इस वक्त नेटो के साथ साथ यूक्रेन तक ट्रंप के बयानों से खुद को हारा महसूस कर रहा है। ट्रंप के डबल बयानों से ज़ेलेंस्की तक चकरा गए हैं। A dictator without elections
Zelensky better move fast, or he's not going to have a country left. Got to move fast, because that war is going in the wrong direction. In the Do you still think that Mr. Zelensky is a dictator? Did I say that? I can't believe I said that. Next one. दूसरी तरफ ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका यूक्रेन के 50% दुर्लभ खनिजों पर अपना दावा ठोक रहा है। यानी यूक्रेन को इस वक्त रूस और अमेरिका दोनों ही मिलकर लूटने में जुटे हैं और बेचारे जेलेंस्की कुछ नेटो देशों के भरोसे यूक्रेन को बचाने में जुटे हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अंडर में आने वाले खुफिया निदेशालय ने ऐसा दावा किया है कि पूरी दुनिया दंग रह गई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय के खुफिया इनपुट के दावों के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के 3 साल की वर्षगांठ पूरे होने से पहले रूस नेटो पर अपनी जीत का ऐलान करने जा रहा है। यूक्रेन की GUR के मुताबिक रूस सऊदी अरब में पुतिन और ट्रंप की वार्ता से पहले ही दुनिया को यह दिखाने जा रहा है कि रूस ने 32 देशों से बने नेटो देशों को हरा दिया है। पुतिन का रूस ये साबित करने जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो को भी 3 साल से चल रही जंग में बुरी तरह से हरा दिया है। हम आपको बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को ट्रंप इशारों ही इशारों में बिना चुनाव के तानाशाह कह चुके हैं। युद्ध विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा लगता है कि जेलेंस्की पर हमला करके राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन के ही प्रचार को दोहरा रहे हैं। 25% यूक्रेन पर कब्जा, 10 लाख यूक्रेनी रूस के गुलाम। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का यह भी दावा है कि पुतिन का रूस 1/4 यानी 25% यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करने के बाद ही जंग रोकेगा। पुतिन को पता है कि रूसी बॉर्डर से सटे यूक्रेनी इलाकों के 25% इलाके पर अगर रूस का कब्जा हो गया तो फिर यूक्रेन कभी भी नेटो में शामिल नहीं हो पाएगा। इसलिए पुतिन ने साल 2026 तक लगातार युद्ध करने का प्लान बना लिया है। ऐसा दावा ISW की तरफ से किया जा रहा है। हम आपको इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW का एक और भी दावा दिखाते हैं जो 10 लाख यूक्रेनियों को रूस का गुलाम बना देंगे। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसने यूक्रेन के होश फाख्ता कर दिए हैं। ISW के रिसर्च और दावों के मुताबिक पुतिन का रूस ट्रंप सरकार से युद्ध रोकने के एवज में यूक्रेन के उन शहरों पर पूरी तरह से कब्जा चाहता है जो अभी रूस के कब्जे में नहीं है। वॉशिंगटन DC में स्थित ISW थिंक टैंक ने नोट किया है कि इन क्षेत्रों में कई बड़े शहर हैं जिन पर रूसी सेना का वर्तमान में कब्जा नहीं है और जब्त करने की कोई संभावना नहीं है। बचे हुए 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर रूस के कब्जे में बड़े शहर शामिल होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। जैसे खेरसोन सिटी जहां लगभग 2,75,000 की आबादी है, उस पर रूस पूरा कब्जा चाहता है। इसी तरह से यूक्रेन क्रामाटोरस्क पर कब्जा चाहता है जहां यूक्रेन के 1,47,000 नागरिक रहते हैं। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के ज़ापोरिजिया सिटी पर दावा ठोका है जिसमें 7,06,000 यूक्रेनी नागरिक रहते हैं। ISW का अनुमान है कि यूक्रेन के कम से कम 10 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक रूस के गुलाम हो जाएंगे और यूक्रेन का एक बड़ा इलाका यूक्रेन हार जाएगा। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वॉशिंगटन में मौजूद जेलेंस्की पर कितना जबरदस्त दबाव होगा, जबकि दूसरी तरफ पुतिन ट्रंप की शह पर यूक्रेन को हड़पने की जोर शोर से तैयारी करने में जुटे हैं। ऐसे हालात में अब नेटो अमेरिका के बिना रूस के खिलाफ क्या एक्शन लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा।